Now, apart from the personal rights that we have discussed under Article 21, there are other rights also. One of them is right to ecology or environment, and the expansive interpretation of Article 21 has led to the development of environmental jurisprudence in India, and number of statutes have been enacted with a view to protect environment against pollution, and an administrative machinery has been put into place for the purpose of enforcement of these statutes. But the unfortunate fact remains that the administration has done nothing concrete towards the reduction of environmental pollution. In this context, Supreme Court has performed a yeoman service by taking cognizance in a number of cases of various environmental problems and giving necessary direction to the administration. The court has thus compelled an inactive and inert administration to make some movement towards reducing environmental pollution. In this way, the court has promoted the broad social interest, and for this purpose, the court has developed upon the directive principles as those contained under Article 47 and 48A, as well as the fundamental duty contained in Article 51A, Clause G of the Constitution. Right to healthy environment is an internationally recognized essentiality. For example, the Basel Convention effectuates the fundamental rights guaranteed under Article 21. The right to information and community participation for the protection of environment and human health is an absolute necessity. These were the observations of the Supreme Court in Research Foundation for Science, Technology, National Resource Policy versus Union of India. It was reported in 2005, Volume 10, Supreme Court Cases, page number 510. Similarly, for the purpose of maintaining ecological balance, the court has laid down that mining within the principle of sustainable development comes within the concept of balancing, whereas mining beyond the principle of sustainable development comes with the concept of banning. This was the observation of Supreme Court in MC Mehta versus Union of India 2009 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 142. देखिए MC मेहता के बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनको ना फिर एक नाम से बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस कंटेक्स्ट में किस चीज़ पे था. अभी बस आप सुनिए so that you understand the right to environment, right to a clean environment. So the word environment under this environmental jurisprudence has a broad spectrum, and within its ambit falls hygienic atmosphere and ecological balance. So the state is obligated to maintain the hygienic environment and ecological balance. Article 21 protects right to life as a fundamental right and encompasses within its ambit enjoyment of life and right to life with human dignity, protection and preservation of environment, ecological balance free from pollution of air and water, without which life cannot be enjoyed. Environmental, ecological, air, water pollution, etc. amounts to violation of Article 21. ठीक है, environmental, ecological, air and water pollution amounts to violation of Article 21. Basically, what I am saying is चाहे environmental pollution हो, ecological pollution हो, air pollution हो, water pollution हो, ये सारा amount करता है violation of Article 21. Hygienic environment is an integral fact of right to a healthy life, and it is not possible to live with human dignity without humane and healthy environment. Again, this concept is being connected with human dignity. There is therefore a constitutional imperative on the government not only to ensure and safeguard proper environment, but also to take adequate measures to promote, protect and improve both man-made and natural environment. The Supreme Court has reiterated that public trust doctrine in relation to conservation of forest, that the government holds these forests in a position of trusteeship for the free and unimpeded use of general public. The Supreme Court has emphasized that the environment is not the property of the state but is a national asset, and that is the obligation of all to conserve the same, and its proper utilization must have regard to the principle of sustainable development and intergenerational equity. इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर सारे रिसोर्सेज हम ही एग्जॉस्ट कर देंगे तो अगली जनरेशन को क्या मिलेगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू बी इक्विटेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, ये कंसेप्ट इंटरजेनरेशनल इक्विटी का बनाया गया है कि हमें इतना भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमारी आने वाली जो पुश्ते हैं वही सफ़र करने लगें बिकॉज ऑफ आवर ओवर कंजम्पशन. ठीक है, वैसे ही ये जो ऑब्जर्वेशन अभी तक मैंने बताया, दीज वर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ तमिल TN गोदावर्मन थिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, ठीक है, तो ज़रा आगे बढ़ते हैं. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में
in the case of Subhash Kumar versus State of Bihar, citation is AIR 1991, Supreme Court page number 420 में बोला कि right to live is a fundamental right under Article 21 of the Constitution and includes the right to enjoyment of the pollution-free water and air for full enjoyment of life. If anything endangers or impairs the quality of life in derogation of laws, a citizen has a right to recourse to Article 32 of the Constitution for removing the pollution of water or air which may be detrimental to the quality of life. ठीक है. अब इन्वायरमेंट को लेके कुछ वेल नोन केसेस हैं जो आपको कोट भी करना है. उनमें एमसी मेहता के केसेस बहुत आते हैं और वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है. ठीक है. तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट केस है वो है 1988 में एआईआर में रिपोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1037, और ये क्लोजर ऑफ टैनरी से डील करता है विच वर पोल्यूटिंग वाटर. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देयर वर सम टैनरीज और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे जो अपना पूरा डंप ना गंगा में डाल देते थे, जिसकी वजह से गंगा पोल्यूट हो रही थी. रिवर गंगा वाज बीइंग पोल्यूटेड. सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ordered closure of these tanneries which were dumping their waste in the river Ganga. ठीक है. Supreme Court said that the pollution of the river Ganga is affecting the life, health and ecology of Indo-Gangetic plain, and the government as well as parliament both have taken a number of steps to control the water pollution, but nothing substantial has been achieved. And in spite of notice, many industrialists have not bothered either to respond to notice or take elementary steps for treatment of industrial effluent before discharging the same into the river. Therefore, we are issuing directions for the closure of those tanneries which have failed to take minimum steps required for the primary treatment of industrial effluent. We are conscious that the closure of tanneries may bring unemployment, loss of revenue, but life, health, ecology have greater importance to the people. नेक्स्ट केस है वो भी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है. दैट वाज रिपोर्टेड इन एआईआर 1997, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 734. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल गाइडलाइंस और डायरेक्शंस दिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ताजमहल विच वाज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट फ्रॉम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है. तो बेसिकली जब आपने बेसिकली मेंशन कर दिया कि इन्वायरमेंट क्या है, व्हाई इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. अब जो अभी मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताए थे ना, गोदावरमन थिरुमुल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, आपको वो कोट करना है. उसके बाद आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या किया. तो उसमें एमसी मेहता के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट केस है वो है आपका वेलोर सिटीजन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल को अप्रूव किया था. उसके हिसाब से once the activity carried on is hazardous or inherently dangerous, the person carrying on such activity is liable to make good the loss caused to any other person by his activity, irrespective of the fact whether he took reasonable care while carrying on his activity. The rule is premised upon the very nature of the activity carried on. Consequently, the polluting industries are absolutely liable to compensate for the harm caused by them to the villagers in the affected area, to the soil and the underground water, and hence they are bound to take all necessary measures to remove the sludge and other pollutants lying in the affected areas. The polluter pays principle is interpreted by the Supreme Court to mean that the absolute liability for the harm to environment extends not only to compensate the victims of pollution but also the cost of restoring the environmental degradation. Remediation of the damaged environment is the part of the process of the sustainable development, and as such the polluter is liable to pay the cost to the individual sufferers as well as the cost of reversing the damaged ecology. Now this precautionary principle and the polluter pays principle has been accepted as a part of law of the land. Article 21 of the Constitution guarantees protection of life and personal liberty. Article 47, 48A and 51A clause G of the Constitution together form your right to a clean environment. मेन सवाल आपको पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे आएगा, तो यही जो मैंने अभी आपको बताया ये आपको लिखना है. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, व्हाट इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? आई डिडंट टेल यू दैट. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का बेसिक सा मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या कंसर्न स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मस्ट एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड अटैक द कॉजेज विच कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ठीक है. मतलब ये एंटिसिपेशन में वो रेमेडियल मैकेनिज़म्स या वो मैकेनिज़म्स बनाए जाते हैं जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका या डिस्ट्रॉय किया जा सके. एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है. ठीक है. दैट इज़ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल तो मैंने अभी आपको बता ही दिया.
वैसे ही नेक्स्ट केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ओलियम गैस लीक वाला है, ठीक है। दिस रिलेट्स टू ओलियम गैस लीक, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें हुआ क्या था कि श्रीराम यूनिट से ओलियम गैस रिलीज़ हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से अ पर्सन डाइड, ठीक है। तो अ, वैसे पूरा नाम बता दूं, दिस वाज श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो वोलियम गैस वहाँ से रिलीज़ हो गई, इट कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो इनके सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो ये था कि क्या ये इंटरप्राइज जो है ये विकेरियसली लाइबल है। तो अगर विकेरियसली लाइबल है तो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर का रूल अप्लाई करेगा, और अगर उसके अंदर नहीं फॉल की तो वो लाइबल नहीं होंगे, या वो एब्सोल्युटली लाइबल है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का रूल अप्लाई किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि we are of the view that an enterprise which is engaged in hazardous or inherently dangerous industry which poses a potential threat to the health and safety of the persons working in the factory and residing in the surrounding areas owes an absolute duty to the community to ensure that no harm results to anyone on account of hazardous or inherently dangerous nature of the activity which is undertaken. The enterprise must be held to be under an obligation to provide the hazardous or inherently dangerous activity which is engaged must be conducted with the highest standards of safety, and if any harm results on the account of such activity, the enterprise must be absolutely be liable to compensate for such harm, and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care and the harm occurred without any negligence on its part. मतलब कुछ भी हुआ, आपने सारे प्रिकॉशंस ले ली थी, उसके बाद भी अगर कोई मरा, ठीक है, लेट अस सपोज ड्यू टू एनी इवेंट लाइक एक्ट ऑफ गॉड, जो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के विकेरियस लाइबिलिटी के केसेस में इज अ डिफेंस। यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में दैट इज नॉट अ डिफेंस। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये थोड़ा टॉट का इशू है लेकिन इधर भी आ जाता है। खैर सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड एंड सेड that the enterprise must be absolutely be liable to compensate for such harm, and it should be no answer to the enterprise to say that it had taken all reasonable care and the harm occurred without any negligence on his part. Since the persons harmed on the account of hazardous or inherently dangerous activity carried on by the enterprise would not be in a position to isolate the process of operation from the hazardous preparation of the substance or any other related element that caused the harm, they must be held to be strictly liable for causing such harm as a part of the social cost for carrying on the hazardous or inherently dangerous activity. Absolute liability को strict liability भी कहते हैं. If the enterprise is permitted to carry on the hazardous or inherently dangerous activity for its profit, the law must presume that the permission is conditional on the enterprise absorbing the cost of any accident arising on the account of such hazardous or inherently dangerous activity as an appropriate item of its overheads. So Supreme Court continued and said, we would therefore hold that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of accident in the operation of such hazardous or dangerous activity, resulting, for example, even by accident in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and the liability is not subject to any of the exceptions which operate in the context of tortious principle of strict liability under rule इन रायलन वर्सेस फ्लेचर। मतलब रायलन वर्सेस फ्लेचर में जो विकेरियस लाइबिलिटी का रूल था वो नहीं अप्लाई करेगा इन केसेस में। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई कर रही है। इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी भी बोला जाता है। पर रायलन वर्सेस फ्लेचर के रूल को, जिसमें सबसे पहली बार स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था, उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी थी। डेंजरस थिंग, such dangerous things should escape, and the use of the land should be non-natural. पर उसके एक्सेप्शन भी कही थे। रायलन वर्सेस फ्लेचर में जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एनंसिएट हुई थी उसके एक्सेप्शन भी कहे थे। एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव, क्या था प्लेंटिव खुद ही की कंसेंट की वजह से या खुद ही चला गया उस प्रॉपर्टी में, खुद ही कोई डेंजरस एक्ट कमिट कर ली, तो द क्या कहते हैं तब रायलन वर्सेस फ्लेचर की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं अप्लाई करेगी। या किसी थर्ड पार्टी की एक्ट की वजह से डेंजरस थिंग एस्केप कर गई तो भी क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं वो लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी, डिफेंडेंट की नहीं होगी, ठीक है। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव वाला जो ग्राउंड था वो ये था कि प्लेंटिव ने खुद ही कंसेंट किया है ऐसी चीज़ के लिए और खुद ही आ गया है, तो
वो फिर वॉलंटाइन नॉन फिट इंजरिया वाले पार्ट हो जाएगा कि जिस चीज़ की कंसेंट दे दी है ना तो फिर इंजरी फिर नहीं मानी जा सकती। या कोई भी एक्ट अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में की गई है तो अगेन रायलन वर्सेस फ्लेचर का वो एक्सेप्शन है। या प्लेंटिफ हिमसेल्फ हैज़ कमिटेड अ डिफॉल्ट, तब भी वो एक्सेप्शन है। तो ये 5 एक्सेप्शन थे, ठीक है, टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय रायलन वर्सेस फ्लेचर। हाउएवर इन दिस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी केस इन सबसे डिसएग्री किया है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सुप्रीम कोर्ट कभी कभी शब्द यूज़ कर रहा है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी न्यू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है। इसको प्रॉपरली बोला जाता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक। एग्जाम में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को देखिएगा, अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लिखा है तो वो हो सकता है रायलन वर्सेस फ्लेचर की बात कर रहा हूँ। एक और लाइबिलिटी होती है, उसको कहते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी ये होती है कि इट इम्पोजेज अ लाइबिलिटी ऑन वन पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय अनदर पर्सन। जैसे कि मान लीजिए आपका एजेंट है, वो कोई काम कर दे तो एजेंट की एक्ट आपकी एक्ट मानी जाएगी, प्रोवाइडेड वो एक्ट वॉज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ड्यूटीज असाइन टू द एजेंट, ठीक है। या पार्टनर है या मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप है, तो इन सिचुएशंस में विकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई की जाती है, दैट यू आर विकेरियसली लाइबल, ठीक है। तो ये 3 तरह की मेजर लाइबिलिटीज होती हैं इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज दैट लाइबिलिटी? दैट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वो ले डाउन की थी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में, ठीक है। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का पॉइंट यहाँ पे अराइज करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का पॉइंट अप्लाई होता है, और देखिए वी आर नॉट लाइबल एज अ कंपनी। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट से कि रायलन वर्सेस फ्लेचर का पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वी आर डेवलपिंग अ न्यू लॉ। और अब से आप चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे प्लांटिफ की कंसेंट हो, डेंजरस या हजर्डस एक्टिविटी आपने की और उसकी वजह से इकोलॉजी में डैमेज हुआ, कोई मर गया, यू आर लाइबल टू कॉम्पनसेट, ठीक है। योर लाइबिलिटी वुड बी एब्सोल्यूट इन दिस केस। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वी वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट द मेजर ऑफ कंपनसेशन इन दीज काइंड्स ऑफ केसेस रेफर्ड टू इन प्रोसीडिंग्स must correlate to the magnitude and the capacity of the enterprise because such compensation must have a deterrent effect, ठीक है। The larger and more prosperous the enterprise, the greater must be the amount of compensation payable by it for the harm caused on the account of accident in carrying on the hazardous or inherently dangerous activities by the enterprise। तो याद रखिएगा इन सारे केसेस में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 20 दिसंबर 1986 को डिसाइड हुआ, दिस इज टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और बाकी विकेरियस लाइबिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। विकेरियस लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल आएगा, अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बताइए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 21, तो राइट टू एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को बताते हुए एंड में आपको ये जजमेंट कोट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्ट में भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट करिए 3 तरह की लाइबिलिटीज़ के बीच में, एब्सोल्यूट, विकेरियस और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो देखिए विकेरियस और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो टॉर्ट्स का टॉपिक है, तो दैट वुड बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या होता है, क्या एक्सेप्शन है, क्या अप्लाई होता है। खैर वो जब टॉर्ट्स में जाएंगे तो डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है। दिस केस लॉ इज डीलिंग विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा 3 तरह की लाइबिलिटीज़ में, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। स्ट्रिक्ट, एब्सोल्यूट और विकेरियस लाइबिलिटी आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। सो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज डीलिंग विद व्हाट? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को बताते हुए ये लास्ट लाइन ज़रूर लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट की कि कंपनसेशन ऐसी देनी चाहिए जिसका डिटरेंट इफेक्ट हो, जितनी प्रॉस्परस इंटरप्राइज उतना ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। अब जरा HIV पॉजिटिव पर्सन और हल्का सा राइट टू प्राइवेसी का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको राइट टू प्राइवेसी के डिस्कशन से बाहर इसलिए रखा था क्योंकि इस पार्ट को स्पेसिफिकली अलग करके सवाल आता है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ। तो इस पे जो हमारा पहला केस लॉ है वो है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जी। साइटेशन इज AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 495। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट वाज कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन
That was, can a doctor disclose to the would-be wife of a person that the prospective groom is HIV positive? Does it infringe the right to privacy of the person concerned? Supreme Court answered both of these questions in negative. Court argued that the lady proposing to marry such person is entitled to all human rights which are available to any human being. Right to life guaranteed by Article 21 would positively include right to be told that the person with whom she was being proposed to be married was a victim of a deadly disease which is sexually communicable. Moreover, when two fundamental rights clash, that is, right to privacy and that right of the would-be wife, that is the right to healthy life, also guaranteed by Article 21, the right which would advance the public morality or public interest would alone be enforced through the process of court. ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के कहता है कि द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ ड्रेडफुल एड्स डिजर्व फुल सिंपैथी. They are entitled to all respect as human beings. Their society cannot and should not be avoided, which otherwise would have the psychological impact on them. They have to decide their avocation. Government jobs or services cannot be denied to them, but sex with them or the possibility thereof has to be avoided, as otherwise they would infect and communicate dreadful diseases to others. The court cannot assess the person to achieve that object. दिस इज अ लोकस क्लासिकस, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जी, याद रखिएगा. ठीक है. वैसे एक और केस है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, वो है एम एक्स ऑफ बॉम्बे वर्सेस मेसर्स जी वाई. इसका साइटेशन है यार 1997 बॉम्बे हाई कोर्ट पेज नंबर 406. यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्या स्टेट डिनाई कर सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एन HIV पॉजिटिव पर्सन. अब इस केस में क्या हुआ था कि एक कैजुअल लेबरर वाज डिनाइड वर्क बिकॉज ही टेस्टेड HIV पॉजिटिव. सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट बिकॉज आर्टिकल 21 नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइवलीहुड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सच प्रोसीजर हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. And the High Court ruled that in an instant case it is arbitrary to deny a job to a casual worker merely because he is an HIV positive person. According to medical opinion, such a person can discharge his normal duties and he poses no risk to any fellow worker. The court has characterized the denial of a job of a casual laborer as unjustified and illegal, and observed in this connection that the rule denying employment to an HIV infected person merely on the ground of his HIV status, irrespective of his ability to perform the job requirements and irrespective of the fact that he does not pose any threat to others at workplace, is clearly arbitrary, unreasonable, and infringes the wholesome requirement of Article 14 and 21 of the Constitution. The court also ruled that the circular directing termination of service of an HIV positive person is unconstitutional, illegal, and invalid. Court quashed that circular in this case and also awarded damages to the applicant for the period for which he had remained out of job. अब राइट टू डाई पे सवाल आता है. अब सवाल ये उठता है कि the person have a life to live with dignity. Does Article 21 also confer the right not to live if the person chooses to end his life? तो पहली बार ये सवाल उठा था पी राथेनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. ये आया 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1844. वहाँ पे 2 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द रिलेशनशिप कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन सेक्शन 309 ऑफ IPC and Article 21 and ruled that right to life embodied in Article 21 also embodied in it right not to live, a forced life to his detriment, disadvantage or disliking. तो मतलब right to live also implies right not to live, and a person cannot be forced to enjoy the life to his detriment, disadvantage or disliking. Court argued that the word life in Article 21 does not connote continued drudgery but means life to live with human dignity. तो पी राथेनाम का इफेक्ट ये था कि उन्होंने क्या किया कि सेक्शन 309 ऑफ द IPC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और इवन कॉल्ड फॉर द डिलीशन ऑफ दैट, labeled it as cruel, irrational, and it actually results in punishing the individual twice. ठीक है भाई. इसके बाद सीधे जो केस आया where this judgment was reconsidered, that was the case of ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. देखिए दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है. इस पर एक तीसरा केस भी है जो लेटेस्ट है, वो मैं भी आपको बताऊंगा. भाई ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 946. In this case the question arose whether attempt to commit suicide is not regarded as penal, then what happens to someone who abets suicide?
ये सवाल उठा था। अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड इज़ नॉट पेनल तो अबेटमेंट टू सुसाइड का क्या होगा? तो प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैक्ट्स अप्रिशिएट किए। अब उस सेटिंग में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ज्ञान कौर और जो उसके हस्बैंड थे वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 30 आईपीसी फॉर अबेटिंग कमीशन ऑफ सुसाइड। ठीक है, और उन्होंने सुसाइड किसकी अबेट की थी? अपनी डॉटर इन लॉ की। So it was argued that Section 306 was unconstitutional as Section 309 IPC has already been declared unconstitutional in P. Rathinam. So it was argued that right to die having been included in Article 21 and 309 being declared unconstitutional, 309 of IPC, any person abetting the commission of suicide is merely assisting in enforcement of his fundamental right. Baapre. So this argument led to reconsideration of that ruling, and Supreme Court overruled P. Rathinam and said right to life is a natural right embodied in Article 21, but suicide is an unnatural termination of extinction of life and therefore incompatible and inconsistent with the concept of right to life. ये देखिए दोनों ही केस आपसे पूछे जाएंगे तो इनके लिए तैयार रहिएगा। अब इसमें जो तीसरा प्लेयर है, जो जजमेंट है, वो है कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 मार्च 2018 को डिसाइड हुआ। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। पर किसके लिए? ये उनके लिए वो आर टर्मिनली इल पेशेंट्स who can execute living will for the appropriate action in the event they are admitted to hospitals. कभी कभी लोग वेजिटेटिव पोजीशन में चले जाते हैं, वहाँ पे कभी कभी उनको ज़िंदा रखना भी क्रूएलिटी होती है, वेयर ओनली द बॉडी इज़ लिविंग बट द पर्सन इनसाइड इज़ ऑलरेडी डेड। जैसे कि अरुणा रामचंद्र शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। ठीक है, अब सिचुएशन ये थी कि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दोनों कन्फ्लिक्ट में थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया फाइनली बाय अ 5 जज बेंच that right to die with dignity is a fundamental right and the individual's right to execute advance medical directive is an assertion of the right to bodily integrity and self-determination and does not depend upon any recognition or legislation by the state. अब ये है कि only an adult person above the age of 18 years and of sound mind can make this advance medical direction. अब ये जो एडवांस डायरेक्टिव है दैट दे शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ 2 adult witness, ठीक है, to be valid and enforceable in the eyes of law. The primary responsibility of ensuring compliance with the advance medical directive should be with the medical institution. If the hospital refuses to recognize the validity of advance medical directive, the relatives or the next friend may approach the jurisdictional high court seeking writ of mandamus for the enforcement of such directive. वहाँ पे हाई कोर्ट में एग्जामिन whether the directive has been properly executed or whether it is still valid. फिर no hospital or doctor should be made liable in a civil or criminal proceeding for having obeyed a validly executed advance directive. ये मतलब अगर advance directive है to terminate the life with dignity of that person who is in a vegetative state या who is terminally ill, तो ऐसी सिचुएशन में doctors won't be liable for civil or criminal proceeding for having obeyed a validly executed advance directive. अब लिविंग विल क्या होती है? लिविंग विल इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच अ पर्सन स्टेट्स हिज और हर डिज़ायर to have or not to have an extraordinary life prolonging measures used when the recovery is not possible for his terminal condition. ऐसे में एडवांस डायरेक्टिव होते हैं कि लिविंग विल वो बना सकते हैं कि मैं जीते जी चाहता हूँ कि भाई अगर मुझे कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं चाहता कि ये मेजर्स यूज़ करके मेरी लाइफ को अननेसेसरली प्रोलॉन्ग किया जाए, जो आर्टिफिशियली बॉडी को ज़िंदा रखने के मेथड हैं, पर एक्चुअली में द बॉडी जो पर्सन को इनहैबिट करती है वो पर्सन जा चुका है बट द बॉडी इज़ ब्रीथिंग। ऐसे में पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड बॉडीली इंटीग्रिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो राइट टू एग्जीक्यूट एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इज नथिंग बट अ स्टेप टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ अफोसाइड राइट. Such a right does not depend upon a legislation but can be exercised by the individual in recognition and in affirmation of his right of bodily integrity, which is duly protected by Article 21. अब किस प्रोसीजर या मैनर में करेंगे जिससे इस चीज़ का मिसयूज़ ना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी. वो गाइडलाइंस मैंने स्टडी नोट में दे रखी हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. द गाइडलाइंस आर नॉट दैट मच रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस, बट पढ़ लीजिए, क्या पता आ जाए. बट बेसिकली इस रिट पिटिशन में क्या कंक्लूजन था? द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट
ठीक है. Human being having a mental capacity to take informed decision, who is an adult, has the right to refuse medical treatment, including withdrawal from the life-saving devices. A person of competent mental faculty is entitled to execute an advance medical directive in accordance with the safeguards as is referred to above. मतलब अभी जो मैंने आपको कुछ बताया कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में कैसे होगा, तो इस केस में यूथेनेसिया अलाउ किया गया था, ठीक है, विच इज़ एन असिस्टेड सुसाइड. अब ये सुसाइड के लिए नहीं, जनरली आप कर लें, ये जो जजमेंट है ये यूथेनेसिया के कॉन्टेक्स्ट में है और उसको उसी के कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा. इसमें जब ज्ञान कौर को रेफ़र किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ज्ञान कौर के केस को, तो उसमें उन्होंने पाया कि उन्होंने कोई बाइंडिंग ओपिनियन नहीं दिया था, ठीक है. जहाँ पे एक पर्सन आउट ऑफ डिप्रेशन, उसकी बॉडी ठीक है, सब कुछ ठीक है, एंड ही डिसाइड्स टू कमिट सुसाइड, और वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे एक पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में है या टर्मिनली इल है, वहाँ पे फिजिशियन या डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देर इज़ नो पॉइंट इन कीपिंग इन अलाइव एंड ही शुड बी यूथेनाइज्ड. ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है. तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया. एक को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो डिप्रेस है, और दूसरे को कोई भी मेडिकल साइंस नहीं बचा सकती. ही इज़ कॉन्स्टेंटली लिविंग इन मिजरी एंड ही वांट्स टू एंड दैट मिजरी. तो वहाँ पे यूथेनेसिया अलाउ होगा, ठीक है. तो इस केस में a dignified procedure of death and right to end your life in a dignified way was upheld, ठीक है. तो पूरी सिचुएशन हमेशा जानिएगा. यहाँ पे सुसाइड करने का राइट किसी के पास नहीं है, ठीक है. द राइट टू किल योर सेल्फ इज नॉट अवेलेबल विद यू. सुप्रीम कोर्ट properly made a distinction between cases in which a physician decides not to provide or continue to provide a treatment and care which might prolong his life, and those in which he decides to administer a lethal drug even though with the object of relieving the patient from pain and suffering. The latter is not covered under Article 21. कि जहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी बहुत दर्द में है, पेशेंट कहता है, ओ सॉरी डॉक्टर कहता है कि मुझसे आपसे आपका दर्द नहीं देखा जाता, और लीथल ड्रग इंजेक्ट कर देता है उसके अंदर, वो मर जाता है. तो वो तो प्रोटेक्टेड नहीं है आर्टिकल 21 में, ठीक है. इवन दो अ पर्सन इज सेइंग कि नहीं 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 मुझे, मैं इससे नहीं जीना चाहता, मुझे मार दो, नो. जब तक टर्मिनल इलनेस या वेजिटेटिव स्टेट में बॉडी नहीं होगी तब तक यूथेनेसिया का सवाल नहीं उठता, ठीक है. लॉ ऑफ द लैंड ये है कि नो वन इज परमिटेड टू कॉज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फिजिशियन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लीथल ड्रग even if the objective is to relieve the patient from pain and suffering. So an adult human being conscious of his mind is fully entitled to refuse medical treatment or to decide not to take medical treatment and may decide to embrace death in a natural way. Euthanasia means literally a good death, ठीक है, and it is also referred to as an assisted suicide. अब यहाँ पे भी एक और सिचुएशन आ गई कि एक तो एक्टिव यूथेनेसिया होता है जहाँ पे पर्सन को खुद ही पता है, और दूसरा एक होता है पैसिव यूथेनेसिया. इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट नॉट टू टेक अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बाय अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज नॉट कवर्ड बाय द concept of euthanasia as it's commonly understood, but a decision to withdraw life saving treatment by a patient who is competent to take the decision, as well as with regard to a patient who is not competent to take decision, can be termed as passive euthanasia, which is lawful and legally permissible in this country. The right of the patient who is incompetent to express his views cannot be outside of Article 21. अब सवाल उठता है कि जो इनकॉम्पिटेंट पेशेंट्स हैं, जो जो डिसीजन अपना नहीं ले सकते, उनका क्या. तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया जाना चाहिए, विच शुड बी टेकन बाय स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग अ कूलिंग पीरियड टू इनेबल द एग्रीड पर्सन्स टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. मान लीजिए कि फैमिली फ्रेंड्स चाहते हैं कि नहीं 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 पैसिव यूथेनेसिया नहीं अलाउ होना चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ जा पाए, इसलिए कूलिंग पीरियड में होगा. अब एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव तो इंडिविजुअल खुद ही अपनी ऑटोनॉमी में लिख देता है, ठीक है, जस्ट इन केस ऐसा ऐसा हो तो मैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे के जा रहा हूँ. सो दैट राइट टू एग्जीक्यूट एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव इज नथिंग बट अ स्टेप टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ दैट राइट दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 बाय एन इंडिविजुअल. मतलब अगर राइट टू लिव विद डिग्निटी है, देन राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, ठीक है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी लेजिस्लेशन एंड अ पर्सन मे एक्सरसाइज दैट राइट as it is in recognition and affirmation of his right of bodily integrity and self determination. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, ये
सिर्फ उनके लिए है. राइट टू डाई विद डिग्निटी इज जस्ट अवेलेबल फॉर दोज who are terminally ill with absolutely no chances of recovery or who are in a permanent vegetative state. ठीक है. क्योंकि होता है कि denying them the right to die in a dignified manner will extend their suffering. ठीक है. यही कॉमन कॉज का मेन आर्ग्यूमेंट था जो पिटिशन ले गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाँ ठीक है, वो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं विट इज़ एन असर्शन ऑफ देयर राइट, एंड अ राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. ठीक है. तो ये याद रखिएगा, पैसिव यूथनेसिया का और राइट टू डाई विद डिग्निटी का. अब इसको ये मत समझ लीजिएगा कि किसी के पास सुसाइड करने का राइट है, दैट राइट इज़ नॉट अवेलेबल. उस पॉइंट के लिए ज्ञान कौर का जजमेंट अभी भी वैलिड है. सेक्शन 309 इज स्टिल इन द स्टैट्यूट बुक्स एंड इट इज़ वैलिड. हावेवर अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है, जेल में नहीं डाला जाता. ठीक है. अब सवाल उठता है राइट टू रेपुटेशन किसी के पास अवेलेबल है? तो आंसर है यस, इट इज़ अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21. केस का नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस लाल कृष्ण अडवाणी. 16 सितंबर 2003 को डिसाइड हुआ था. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव एंड प्रिजर्व वंस रेपुटेशन एंड ऑल्सो हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट इट in case any authority in discharge of its duty fasted upon it under law traverses into the realm of personal reputation and adversely affecting him, must provide a chance to have him to say in the matter. मतलब बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं तो ये बिना उसको चांस दिए टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ दे कांट डू सो. In such circumstances, Supreme Court continues, right of an individual to have a safeguard of principle of natural justice before being adversely commented upon by a commission of inquiry is statutorily recognized, and a violation of the same will have to bear the scrutiny of judicial review. So right to reputation is there under Article 21. अब मैंने आपको नॉइज़ पोल्यूशन को भी लेके कई केसेस बताए हैं आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ. अगर आपको कोट करना हो तो आप चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन का केस कोट कर सकते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन इवन इफ सच नॉइस वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ और वाज कनेक्टेड विद रिलीजियस एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी रिलीजन ये नहीं प्रिस्क्राइब करता है कि प्रेयर ना आप लाउड स्पीकर पे करें. ठीक है. रिलीजन के नाम पे आप क्या कहते हैं ओल्ड इन्फॉर्म पर्सनस को, स्टूडेंट या चिल्ड्रन की उनकी नींद आप ख़राब नहीं कर सकते, चाहे दिन में हो या रात में हो. दीज एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परमिटेड सिंस दीज पीपल हु आर एज सिक एंड द पीपल हु आर अफेक्टेड विद साइकिक डिस्टर्बेंसेस आर वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव टू नॉइजेस. Under Environmental Protection Act 1986, rules for noise pollution level are framed which prescribe permissible limits of noise in residential, commercial, and industrial areas or silent zones. And by amplifying one's speech with the aid of artificial devices, a person cannot expose an unwilling listener to obnoxious levels of noise, thereby violating the other person's right to peaceful pollution-free life guaranteed under Article 21. Article 19 Clause 1 Subclause A cannot be pressed into service for defeating the fundamental rights guaranteed under Article 21. ये मैंने Article 19 में भी डिस्कशन किया था. एक और केस बता दो नॉइस पोल्यूशन में, वो है द रेफरेंस ऑफ नॉइस पोल्यूशन. 18 जुलाई 2005 को डिसाइड हुआ था. ठीक है. सेम ऑब्जर्वेशन हैं उसके भी, दोनों में से कोई भी कोट कर लीजिएगा, दैट वुड सफाइस. तो नॉइस पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए नहीं काम करेगा, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए आर्टिकल 25 भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर रिलीजियस ग्रुप्स यही पॉइंट लेते हैं कि देखिए हमारे पास आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोपेगेट आवर रिलीजन है. सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू प्रोपेगेट ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू दी एक्सटेंड कि जहाँ पे आप आर्टिफिशियली अपने साउंड को एम्पलीफाई करें टू एन ऑब्नॉक्शियस लेवल्स और उनको सुनाएं जो सुनना नहीं चाहते. ठीक है. आप किसी का राइट अंडर आर्टिकल 21 वायलेट नहीं कर सकते, और वो राइट कौन सा है? राइट टू अ पीसफुल पोल्यूशन फ्री लाइफ. ठीक है. यहाँ पे किस पोल्यूशन की बात हो रही है? नॉइस पोल्यूशन की. अब जरा मैं आ जाता हूँ, एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ राइट टू एजुकेशन पे, आर्टिकल 21A पे. इस पे केस है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसको कैपिटेशन फ़ी केस भी कहते हैं. AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2178 इसका साइटेशन है. ठीक है. अब इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था
कि citizens of this country have a fundamental right to education which flows from Article 21. This right, however, is not absolute, and its content and parameters have to be determined in the lights of Article 45 and 41. In other words, every child citizen has a right to free education until he completes the age of 14 years. Thereafter, his right to education is subject to the limits of economic capacity and the development of the state. तो राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल ऐड होने से पहले ना ये जजमेंट आया था जिसने आर्टिकल 21 में ही ये राइट ट्रेस कर लिया था. तो ये जजमेंट याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया. आर्टिकल 21 के ऐड होने से पहले ये जजमेंट था जिसने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू एजुकेशन, और उसके बाद 21A ने उन्नी कृष्णन के ऑब्जर्वेशंस को लेके राइट टू एजुकेशन फॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में. इम्प्लिसिटली तो था ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया, बट अब फॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर दिया है पार्लियामेंट ने बाय द वे ऑफ इट्स अमेंडिंग पावर. अब राइट टू लीगल एड भी आई थिंक आई हैव कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, है ना, जब क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहा था. तो लीगल एड पे ध्यान रखिएगा. हुसैनारा खातून का केस और जो खत्री 2 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बताया था ना, दोनों में एक ही ऑब्जर्वेशन है कि राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 21 में आता है फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी टू एन इंडिजेंट अक्यूज पर्सन, और स्टेट बाय प्लीडिंग फाइनेंशियल एबिलिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से शायद वे नहीं कर सकता. ठीक है, तो राइट टू लीगल एड भी मैं बता चुका हूँ. वो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को रेड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देन केम टू दैट कंक्लूजन. राइट टू ट्रैवल अबाउट तो सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फाइनली अप्रूव हो गया था. दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. अब एक केस था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 वॉल्यूम 5 स्केल में रिपोर्ट किया गया था. ये राइट टू फूड से डील करता है. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड रिकॉग्नाइज किया गया था और बोला था पीपल हु आर स्टार्विंग बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू परचेज फूड ग्रेन्स हैव अ राइट टू गेट फूड अंडर आर्टिकल 21, and therefore they ought to be provided the same free of cost by the state out of surplus stock lying with the states. The people entitled to such situation are those who are aged, infirm, disabled, destitute women, men, pregnant and lactating women and destitute children. ठीक है, तो ये भी हो गया. राइट टू फूड भी आपका हो गया. राइट टू स्लीप भी है, वो रामलीला मैदान में बोला गया था, रामलीला मैदान के इंसिडेंट्स में. ठीक है, रामलीला मैदान का जो इंसिडेंस था जो मैंने आपको पब्लिक ऑर्डर के केस में बताया था, उसमें राइट टू स्लीप भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेस किया था अंडर आर्टिकल 21. हर एक नया नया राइट बनता जा रहा है. खैर, सो आई थिंक आर्टिकल 21 मैंने कंप्लीट कर लिया. आई जस्ट वांट टू सी मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया. हाँ, फाइनली एक और चीज़ बता देता हूँ. एक है राइट टू हेल्थ, दैट इज़ विंसेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. साइटेशन इज़ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 990. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि a healthy body is the very foundation of all human activities. And Article 47, a director principle, lays stress on improvement of public health and prohibition of drugs injurious to public health as one of the primary duties of the state. तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैव टू रैंक हाई as these are indispensable to the very physical existence of the community, and the betterment of this depends on the building of the society of which the constitution maker envisaged. Attending to public health, in our opinion, is of high priority and it is at top. तो राइट टू हेल्थ भी है. राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट याद रखिएगा, परमानंद कटारा का जो जजमेंट मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो आई थिंक आई हैव प्रॉपरली डेल्ट विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. हाँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. So Article 21 is now complete. Now we can move forward finally. So we have finished two biggest topic of the Constitution, Article 19 and Article 21. And now I will see you in the next lecture. Please focus on the case laws that I have told you and try and understand them. And in case of any problem, you can always approach me. Okay, that is it for today. I'll see you tomorrow.